میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری 1 سال کی بیٹی بھی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ بس مجھ میں خامی تھی، میں بالکل سادگی پسند تھی، جبکہ میرے شوہر کو میری یہ بات بری لگتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہر وقت نئی دلہن کی طرح تیار ہو کر رہوں۔ ایک دن میں بازار سے گھر واپس آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا سلیم ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھی جو میرے شوہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اور وہ ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور میرے شوہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ کیا کوئی رشتہ دار یا ان کی کوئی پرانی دوست؟ اس رات وہ نصف شب کے بعد گھر آئے اور میں ان کے انتظار میں جاگتی رہی۔ سلیم سے دیر گھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھ پر برس پڑے۔ کہا کہ تمہیں مجھ پر پہرے دینے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو آئندہ اس موضوع پر بات کی ہو۔ میری مرضی میں جب گھر آؤں جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھ پر پابندیاں لگانے والی؟ سلیم سے میں 10 برس عمر میں چھوٹی تھی۔ ویسے تو میری ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس وہ اپنے ذاتی معاملات میں میری دخل اندازی کو پسند نہ کرتے تھے، اور شادی کے پہلے دن سے ہی انہوں نے مجھ پر اپنے روب کا سکہ بٹھا لیا تھا کہ ایک سے دوسری بات کرنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی کہی بات پر کوئی سوال اٹھانے کا مطلب اپنے ہی گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ وہ بہت شاطر و آمرانہ مزاج کے تھے، اپنی طبیع کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک قیامت خیز رات تھی جو میں نے جاگ کر گزار دی۔ چپ کیا سادھی، موصوف کے حوصلے ہی بلند ہو گئے۔ اس کے بعد رات کو دیر سے گھر آنا ان کا معمول ہو گیا، اور میرے لبوں پر تالے لگ گئے۔ میری کیا مجال جو ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ پہلے جہاں جانا ہوتا گاڑی پر لے جاتے، مگر اب کہیں چلنے کو کہتی تو مجھے ٹال دیتے، اور جہاں تک ہو سکتا مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم آپس میں بہت کم بات کرتے تھے۔ ایک دن وہ صبح 4 بجے گھر لوٹے۔ رات بھر جاگنے سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جرأت کر کے کہہ دیا کہ اب اگر وہ اس لڑکی سے ملے تو میں ابو کو بتا دوں گی۔ اس دن تو سلیم نے حد کر دی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، کون سی لڑکی، میں کسی لڑکی کو نہیں ملتا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے خود انہیں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے تو غصے میں آ گئے اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے والد کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کہہ دیں گے۔ میں ایک ننھی منی بچی کی ماں تھی، جانتی تھی یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی بیٹی سے جدائی سہنی پڑے گی۔ میں اپنے شوہر کا ہر ظلم سہنے پر مجبور تھی، مگر بیٹی سے دوری کا تصور بھی محال تھا۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی، مجھے گھر میں کھٹکا محسوس ہوا۔ آنکھ کھل گئی، کچھ دیر یوں ہی بستر میں سہمی پڑی رہی۔ میرے خیال میں سلیم ابھی نہیں آئے تھے، کیونکہ اب آدھی رات کے بعد ہی گھر آنا ان کا معمول تھا۔ تاہم گھر میں کھٹکا کس بات کی علامت تھا؟ کیا کوئی چور گھس آیا تھا؟ ایسا خیال آتے ہی دل دھڑک اٹھا اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی باتیں کرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز سلیم کی تھی۔ وہ آ چکے تھے، گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے اور خود ہی تالا کھول کر آ جاتے تھے۔ دوسری آواز کسی عورت کی تھی۔ تبھی ماتھا ٹھٹکا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا، کچھ اس انداز سے کہ میرا رواں رواں سلگ اٹھا۔ کبھی کبھی انسان لاکھ چاہے مگر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ وہ لڑکی اور سلیم ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے اور اس لڑکی نے اپنا سر سلیم کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس دن اپنا اختیار کھو دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ضبط کر جاتی، لیکن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ جانے مجھ میں اپنے حق کے لیے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے جوتا اٹھا کر اس عورت کو دے مارا۔ پھر کیا تھا، سلیم تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اس 2 ٹکے کی عورت کے سامنے مجھے دھنک کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صرف مرد ہی ظالم نہیں ہوتا، قصور کچھ نہ کچھ عورت کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں میرا کیا قصور تھا۔ کیا میرے شوہر کا اس طرح رات کے اندھیرے میں کسی غیر عورت کو لانا جائز تھا؟ کیا اس پر بھی بیوی کو خاموش ہی رہنا چاہیے تھا؟ یہ بات میں نہ سمجھ سکی۔ سلیم کا غصہ آپے سے باہر تھا۔ کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ سلیم نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور مجھے دھکے دینے لگے۔ وہ عورت لاکھ بری سہی، اچانک سے بولی، سلیم ٹھہرو، صبح جو مرضی آئے فیصلہ کر لینا، یہ تمہاری بیوی ہے، اس وقت اس کو گھر سے باہر مت نکالو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے گھر سے قدم نہ نکالنے دیا۔ سچ کہتی ہوں کہ مرد جب خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو انسان نہیں رہتے۔ اس وقت سلیم تو جلاد بن گئے تھے۔ میں ساری رات اپنے کمرے میں روتی رہی اور سلیم دوسرے کمرے میں اس عورت کے ساتھ عیاشی کرتے رہے۔ صبح 5 بجے ایک گاڑی اس عورت کو لینے آئی اور وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔
ऑफिस जाते वक्त सलीम ने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मेरे मेके ले आया। दरवाजे पर उतार कर चले गए। मैं चुप करके सारा रास्ता रोती रही, मगर उन्हें मेरा कोई एहसास ना था। उन्होंने बेटी को भी मुझे उठाने ना दिया था कि वो इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। अपना दुख भुलाकर बेटी की जुदाई मेरे लिए क़यामत बन गई। उनकी बहन का दोपहर से पहले फ़ोन आ गया कि भाभी तुमने मेरे भाई के साथ कितना बुरा किया है, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। दूसरे शहर से भाई की एक दोस्त आई थी और आपने उनके सामने भाई की बेइज्जती कर दी। अच्छी बीवियां सब्र करती हैं तो ही फल पाती हैं, मगर ये तुमने क्या किया। अब भुगतो। तुम्हारी बेटी मेरे पास सलीम भाई छोड़ गए हैं। सोचा तुम्हें तसल्ली दे दूं, ताहम इसे ले जाने को मत आना। फिलहाल सब्र करो और भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने मजीद जुर्रत दिखाई और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सच कहती हूँ वो तुम्हें तलाक देने पर तुले हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इस अमर से रोका है, लिहाजा तुम्हें भी समझा रही हूँ कि फ़िलहाल मेके में कुछ दिन चुप होकर बैठ जाओ और इस किस्से को हवा मत दो ताकि सुलह की कोई गुंजाइश निकल सके। फ़ोन सुनकर आंसू थमते ना थे। सलीम पर यही मिसाल सादिक आती थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं मेके में थी और दिन गुजरते जा रहे थे। नंद की हिदायत को गिरह में बांधकर चुप हो गई और इस मामले का चर्चा भी ना किया कि मेरे वालिदैन गुस्से में आकर खुद कोई कदम उठा ले और मेरी बेटी नाहक माँ की जुदाई का अजाब उम्र भर को भुगतने पर मजबूर हो जाए। कब तक सब्र करती कि वो मेरी बेटी को मुझसे मिलने ना देते थे और मैं उनकी दीद को तरस रही थी। मैंने सिर्फ अम्मी और भाभी से इस बात का जिक्र किया था और बाकी सबको बताने से मना किया था। अम्मी जान मुझे तड़पता देखकर भाभी को कहती थी कि तुमने उन लोगों की इतनी तारीफ की थी और ये तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे बुरे निकले। हमने बेटी का रिश्ता तुम्हें देखकर और तुम्हारे कहने पर दिया था। अब तुम इस मामले को संभालो, वरना फिर हम भी बुरे बनकर दिखाएंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद मेरी हालत देखकर रो पड़ती थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि किसी तरह इस औरत का पता करना चाहिए। वो कौन है जिसकी वजह से सलीम ने ऐसा इंतहाई घटिया रवैया अख्तियार कर लिया है कि मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते की भी उसकी नज़रों में अहमियत बाकी नहीं रही है। भाभी मेके गई और अपने भाई के ज़िम्मे ये काम लगा दिया। उन लोगों ने पता कराया तो मालूम हुआ कि सलीम के साथ जो औरत वाबस्ता है उसका नाम नीलोफर है और वो एक कोठे वाली की बेटी है। मैंने भाभी को ये वाक़या बता दिया था कि वो औरत लाख बुरी सही, लेकिन मेरा जूता पड़ने पर भी उसने रात के वक्त मुझे घर से नहीं निकलने दिया, जबकि सलीम मुझे धक्के देकर निकाल रहे थे। इसका मतलब ये कि उस औरत के दिल में इंसानियत बाकी है। इसी वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया कि उस औरत से मिलकर उसको खुदा का वास्ता देना चाहिए कि वो हमको बर्बाद ना करे और एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी पर भी तरस खाए जिसको उसकी माँ से महरूम कर दिया गया था। मगर उस औरत से मिलना मुहाल था, क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो ऐसा इलाका था जहाँ शरीफ मर्द तो जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतों के लिए एक ममनू इलाका था। वहाँ हमारे लिए कदम रखना क़यामत को आवाज़ देना था। मेरी भाभी ने जुर्रत कर ली और मेरी खातिर उस बदनाम इलाके चली गई। वो नीलोफर को समझाने और मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी। मेरे दर्द को देखकर जज्बात में ये कदम भी उठा लिया, बगैर सोचे कि इसके बाद उनकी अपनी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। बहरहाल ये जुर्रत भाभी को महंगी पड़ी, क्योंकि नीलोफर को तलाश करने के बाद भाभी ने उससे मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 10 लाख दो, मैं सलीम की जान छोड़ दूंगी। भाभी ने उससे कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, तुम कुछ खुदा का खौफ खाओ। वो मुस्कुराते हुए बोली, बीबी जाओ अपना काम करो, मैं एक तवाइफ हूँ और तवाइफ को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, चाहे किसी की ज़िंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। इसी बात पर उन दोनों की बहुत तकरार हुई और वो नाकाम उठकर वापस आने लगी तो सलीम ने उन्हें नीलोफर के घर से निकलते हुए देख लिया। सलीम तो वैसे ही मौके की तलाश में थे कि हमें मज़ीद अजियत पहुंचा सके। उन्होंने भाई जान के दफ्तर जाकर मुलाकात की और उन्हें ये बताया कि तुम्हारी बीवी को कल उन्होंने वहाँ देखा कि जहाँ उनको देखे जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भला उस बाज़ार में उनका वहाँ क्या काम था? ज़रा बाजी फरजाना से घर जाकर पूछना, क्योंकि मैंने खुद उनको अपनी आंखों से वहाँ देखा है। बीवी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे भाईजान की कनपट्टियाँ सुलग उठीं। उन्हें सलीम की बात का यकीन ना आता था, मगर वो तो कस्में खा रहे थे कि सामना करवा लो, अगर मैं झूठा हूँ तो 100 जूते बीच बाजार में खड़े होकर मारना। भला मैं अपनी तायाजाद बहन पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों धरूंगा, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। बीवी से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आ जाता। बाजी फरजाना हमारे ख़ानदान की इज्जत है, मगर आपके तो घर की इज्जत है। किस मुंह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे की गोश गुजार कर सकता हूँ? भाईजान को उस पर मुझे मेके छोड़ने का गुस्सा जो था
वो उसकी ये सारी बातें सुनकर भूल गया और वो अपनी आग में सुलगते घर आ गए। आते ही भाभी को कमरे में बुलाया और पूछा कि तुम वहाँ क्यों गई थी जहाँ पर हम भी कदम धरना पसंद नहीं करते? तुम्हारा उस तवाइफ से क्या ताल्लुक है? हम मर्द भी उस दिन की रोशनी में उस मोहल्ले जाने से शर्माते हैं। मुझे इस बात की वजाहत दो। भाभी घबरा गई थी। पहले तो डर के मारे भाभी ने इनकार किया, लेकिन जब भाई ने ठीक जगह और वक्त तक बता दिया तो समझी कि शायद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। कहा कि हाँ गई थी, मगर किसी नेक काम की गर्ज से गई थी। नेक काम की गर्ज से जाना इस कदर ज़रूरी था तो मुझसे कहा होता। क्या मुझसे भी वो नेकी छुपाना चाहती थी? आखिर वहाँ के मकीनों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा वहाँ के किसी मकीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वहाँ एक नीलोफर नामिक तवाइफ से मिलने गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन राहीला का घर खराब हो रहा है। वो तवाइफ सलीम भाई के साथ वाबस्ता हो गई है और तुम्हारी बहन को तलाक दिलवाकर वो खुद सलीम से शादी करना चाहती है, और सलीम भी उसके झूठे प्यार में फंस चुके हैं। इसीलिए उन्होंने राहीला को यहाँ ला छोड़ा है। 3 माह बीत चुके हैं, अब तक राहीला ने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? एक बस तुम उसकी हमदर्द हो क्या, जो उस तवाइफ को समझाने तुम उस बदनाम जगह पहुंच गई? ये बात मेरी अकल तस्लीम नहीं कर सकती। मामला कुछ और है। आपको शायद सलीम भाई ने भड़का दिया है। आप अपनी बहन से पूछ लें। राहीला अब तुम्हें बचाने के लिए यही कह देगी जो तुम कह रही हो। सलीम को इस बारे में कोई इल्म नहीं, ना वो मुझसे इस बारे में राहीला से बदसलूकी करने के बाद मिलने की जुर्रत कर सकता है। वहाँ मैंने खुद तुम्हें देखा है। भाईजान ने भी बीवी से सरी झूठ बोल दिया और वो भी डर गई और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। कहा कि मेरी नीयत इस औरत को समझाकर सलीम से दूर करने की थी, ताहम तुम्हारी बहन का घर दोबारा आबाद हो सके। भाईजान ऐसी तावीलियों पर और तैश में आ गए और बीवी पर हाथ उठा दिया। कहा कि बेशक मेरी बहन का घर उजड़ जाता, मगर तुम्हें एक तवाइफ के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। सलीम अगर उसको तलाक देता है तो दे दे, लेकिन तुम्हें उस गलत जगह जाकर एक बदनाम ज़माना औरत से मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत ना थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसी औरतों का तो काम ही किसी का घर उजाड़ना होता है? ये मोहब्बत और इज़्ज़त के लिए नहीं, बल्कि मालो दौलत समेटने के लिए जीती हैं। भाभी ने बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे भाई को तो उस पर इस कदर गुस्सा था कि उस गुस्से की आंधी ने उनके दिमाग के चिराग को बुझा कर रख दिया। उन्होंने गुस्से में उनको 2-4 थप्पड़ मार दिए और उन्हें घर से निकाल दिया। भाभी रोती हुई उस तवाइफ को बद्दुआएं देती हुई मेके चली गईं। बाद में उन्होंने मेरी भी खूब खबर ली कि तुम तो मियाँ से झगड़ा करके कुछ और ही सबब बताती थी। अगर इस झगड़े का सबब कोई गलत किरदार औरत है तो तुमने हमसे जिक्र क्यों नहीं किया? आखिर इसमें क्या मसलिहत थी? इसका मतलब है कि कसूर सिर्फ सलीम का नहीं, तुम्हारा भी है, जिसकी तुम हमसे पर्दा पोशी किए रहती हो। कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई बीवी को यूं मार कर घर से निकालने पर बहुत पछताने लगे कि उन्होंने गुस्से में ये क्या गज़ब कर दिया। जो हो चुका था वो तो हो गया। अफसोस ये कि मैं तो उजड़ी ही थी। अपने से ज़्यादा दुख इस बात पर था कि मेरी भाभी बेचारी को ना हक ना करदा गुनाह की सज़ा मिल गई और उसका घर भी उजड़ गया। उधर मेरी बेटी नंद के पास तो इधर भाभी के बच्चे हमारे पास। ये अजीब सानिया हो गया। भाभी को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी उनसे कम ना थी। मेरा चैन सुकून लुट गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सलीम और नीलोफर गाड़ी में जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। सलीम को भी चोटें लगी थी, मगर नीलोफर की हालत बहुत नाजुक थी। उसे फौरी अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी भी बिल्कुल तबाह हो गई थी। नीलोफर के दोनों पाँव, एक बाजू इस हादसे की वजह से टूट गए थे और सारे जिस्म पर चोटें लगी थी। अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। आखिरी वक्त में उसने सलीम से इतना कहा, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने चली थी और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। मेरा बचना तो अब बहुत मुश्किल है। अब खुदा के लिए मेरी वजह से अपनी बीवी को तलाक मत दो। यही उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद वो दोबारा ना बोल सकी। अब सलीम को भी एहसास हो गया था कि उसने अपना घर तो बर्बाद किया ही था, मगर अपने घर के साथ किसी और का घर भी बर्बाद करने चला था, जिसकी सज़ा उसे मिल चुकी थी। इस वाक़े के बाद वो सीधा अपने ससुराल गया। उस वक्त तक मेरे भाई अपनी बीवी से माफ़ी मांग कर उन्हें मनाकर वापस अपने घर ले आए थे और सलीम ने राहीला से माफ़ी मांगी और उसे वापस घर चलने को कहा। माफ़ी मांगने और सारी बातें बताने के बाद राहीला के माँ बाप ने यही फैसला किया कि अब राहीला को अपने घर वापस जाना चाहिए और जाकर अपनी बेटी को खुद संभालना चाहिए। बिलाखिर वो मुझे घर ले गए। अब उनका किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था। मेरे वालिदैन ने बच्ची की वजह से मुझे उनके साथ जाने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी थी और ना मेरे वालिदैन के साथ कभी बदकलामी की थी। तभी मेरा घर बच गया और मैं वापस अपने आशियाने में समा गई। मेरी बेटी आज मेरे पास है
اور میرا گھر بس رہا ہے اور بھائی اور بھابھی کا رشتہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں بھی خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خود کو ویسا بنانا چاہتی ہوں جیسے میرا شوہر چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ کبھی وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ آج میرے شوہر میری اس کوشش سے بہت خوش ہیں اور ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔